Good evening and welcome everyone to this live session. Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. I'm a bit late today. I'm so sorry about that. So we are late by 15 minutes. There was some issue. I was earlier trying to take the session on the uh, studio but could not do so due to some technical issue. So आज की क्लास में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. वी हैव सीन द अमेंडमेंट ऑफ अ बेसिक लॉ. बेसिक लॉ का जो अमेंडमेंट होता है, बेसिक लॉ का बेसिक बिल जो हम लेके आते हैं उसे बोला जाता है अमेंडमेंट बिल. जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड करने के लिए लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया. वैसे ही कोई और बिल अमेंड करना है तो उसके लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट था, पुराना जो था मोटर व्हीकल्स एक्ट, अब उसको अमेंड करना है, अपडेट करना है टू रिफ्लेक्ट दी कॉन्टेम्परेरी रियलिटीज. तो हमें क्या करना होता है? What are we supposed to do? We are supposed to bring about motor vehicles amendment bill. When the motor vehicles amendment bill is passed by simple majority, the old law stands amended. Amendment मतलब change. Simple majority से ordinary bill को change किया जा सकता है. Ordinary bill could be changed by way of simple majority. Now, this much is clear. But then how is constitutional amendment different from ordinary amendment bill? Constitutional amendment होता है constitution को amend करना. Constitution is a permanent book. Constitution is a book of a permanent nature. Am I right? Constitution is the book of a permanent nature. Am I right or wrong? Constitution is the book of a permanent nature. In order to amend any provision in the book of a permanent nature, we need to have some special majority. Special majority is there to amend different provisions of constitution. Different provisions of constitution are amended by different types of majority. ठीक है, उन different types of majority को हम आज इस lecture में cover करेंगे. Got it? Now, how many of you did not cover the homework that I had given for the topic judiciary? How many of you did not cover the topics related to judiciary? उसको थोड़ा सा खुद देखोगे. Aim of the lesson, need of amendment क्या होता है, modes of constitutional amendment, informal methods, judicial interpretation. These are the subheadings that we are going to cover in today's class. So let's get started, guys. Indira, Nehru, Gandhi versus Raj Narayan case, all these cases are there. Students will be able to gain knowledge about the need for constitutional amendment, formal and informal methods of constitutional amendment. What is rigid and flexible constitution? What is rigid and flexible constitution? Formal method of amendment in India and the provisions under Article 368. Landmark cases that revolved around the question of amendability of constitution. Clear? चल तो आगे चलते हैं फटाफट. Need for amendment of constitution. Constitution of a country is the fundamental law of the land. You all know this, on the basis of which all the other laws are made and enforced. Constitution is the skeletal law. Okay, constitution is the broad framework and all the laws have to conform to the constitutional law. Anything that exceeds the scope of constitution is called ultra vires the constitution. कोई भी लॉ यदि कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप को एक्सीड करता है तो उसे अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. क्लियर? The will of the people also changes with time. Technology advances day by day. Social customs and ideas change from time to time, creating new problems and altering the nature of the old ones. It is therefore possible that a constitution
drafted in a particular era. देखो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन which is not flexible to accommodate the realities of present times, contemporary times, constitution which is not in sync with times will become a dead letter of law. ठीक है. Constitution which does not accommodate the contemporary changes, कॉन्स्टिट्यूशन जो समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलता, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेड किताब बन के रह जाएगा. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन it is called as an organic document. What is organic document? We are organisms. We adapt according to winters, summers. We adapt ourselves according to our environment. Right? A democratic constitution has to be particularly responsive to the changing conditions. Since a government founded on the principle of popular sovereignty must make possible the fresh assertions of popular will as that will change. पढ़ो, इसको समझ में आया बेसिक मीनिंग. मैंने जो फ्रेजियोलॉजी दी है, ऑर्गेनिक होल, कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इन सिंक विद द टाइम्स, इट विल बिकम अ डेड लेटर ऑफ लॉ. समझ में आ रही हैं ये चीजें? क्लियर? अब देखो, मोड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल: इनफॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल मेथड्स. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन: judiciary can also bring about amendments to the constitution. Can anyone give me the answer to give me an example of method of constitutional amendment? Judicial method, amendment brought to judiciary, amendment brought to constitution by judiciary. Please answer. It depends upon the flexibility or the rigidity of the constitution. Clear? Modes of constitutional amendment: informal methods, formal methods. Now, informal methods, judicial interpretation. In this case, the constitutional text does not change, but the interpretation of the text changes. The words in the constitution having no meaning in one context may be given somewhat different meaning in another context. Article 21, Keshwanand Bharti case. Right, basic structure of constitution. You guys are right. Contemporary example है article 21, right to privacy. ठीक है. लेटेस्ट एग्जाम्पल दोगे, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी दोगे, हिस्ट्री से भी एक एग्जाम्पल दोगे, लेटेस्ट एग्जाम्पल भी दोगे. दोनों एग्जाम्पल दोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा. क्लियर? Now the words in the constitution having no meaning in one context may be given some different meaning in another context. While the language of the constitution does not change, the changing circumstances of a progressive society for which it was designed yield new and fuller import to its meaning. The courts play a dominant role in interpreting the constitution. This process is slow because it develops from case to case over a length of time, and it may take long for a particular view to crystallize. For example, view around डेथ पेनल्टी है ना. कल हमने ज्ञान कौर केस देखा था. तो सुप्रीम कोर्ट को इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू कम फुल राउंड. पूरा चक्कर काटने में सुप्रीम कोर्ट को एक टाइम लगता है बिफोर द व्यू पॉइंट क्रिस्टलाइजेस. फॉर एग्जाम्पल, previously triple talaq was not declared as illegal,
उससे पहले उसके साथ साथ 377 was not considered to be ultra vires the constitution. Homosexuality was criminal, है ना. सबरीमला टेम्पल एंट्री बैन, पहले इसको वैलिड करार दिया गया था हिस्ट्री में, लेकिन बाद में इसको सही माना गया कि इनवैलिड है ये, है ना. समझ में आया. तो it takes a lot of time for the judiciary. The examples that I'm giving you, you have to jot them down and write them wherever relevant in your mains exam. The courts in India, though have used this process in several occasions, it is limited for the reason that Constitution of India is very very detailed. Language is specific and not general. Language specific है, general नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे. Then conventions and constitutional usage. The operation of constitutional provisions may be modified by the growth of conventions, practices and observances. This is also a slow process. Conventions and usages, though operating within the framework of the provisions of the Constitution, nevertheless do modify their content and effect. Conventions have been characterized as non-legal rules. Non-legal because courts do not apply them. Rules because they are binding and are observed in practice. Conventions operate in several ways. It may nullify a constitutional provision without formally abolishing it. It may work by transferring the power granted to one authority in the constitution to another. कन्वेंशंस जो है नॉन लीगल रूल माने जाते हैं. कन्वेंशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूसेज. कन्वेंशन मतलब परंपरा जो चलती हुई आ रही है बहुत टाइम से. हाजिरी लगाओ सारे, सो रहे हो आज तुम लोग, हाजिरी लगाओ फटाफट. It may affect constitution by supplementing a provision therein. ठीक है. It may work by transferring the power granted to one authority in the constitution to another. It may nullify a constitutional provision without formally abolishing it. It may nullify. So formal method, rigid and flexible constitution. Formal method क्या है? देखो, depending upon whether the amending process changing the language of text in the written constitution को हम amending process कहते हैं. It is depending upon whether it is easy or difficult. Constitutions of various countries are sometimes classified as rigid or flexible. A flexible constitution कौन सी होती है? Which amendment can be brought about rather as easily as enacting an ordinary law. Ordinary law में और amendment लाने में कोई difference ही नहीं होता. That is, British Constitution can be amended by an ordinary act of Parliament because Britain follows the doctrine of parliamentary, DOCTRINE, doctrine of parliamentary sovereignty. Parliament is sovereign in Britain, whereas in our country there is a doctrine of constitutional sovereignty because Indian Constitution is neither rigid nor that flexible. It is neither rigid nor flexible. Clear? A rigid constitution is regarded as fundamental law of the country as it lays down the country's governance principles, defining its permanent value. Hence, the method of constitutional amendment should ensure that basic principles are changed only after thorough consideration and deliberation, and hasty and ill-considered changes under political pressures are avoided. In a rigid constitution, the process of constitutional amendment is more elaborate and difficult than the enactment of ordinary legislation. Else, the constitution will lose its permanence and supremacy. Written constitution is usually said to be of rigid type. Clear? Written constitution जहाँ पे होती है rigid होती है. ब्रिटेन में 2005 तक उनका जो है written constitution नहीं था. ठीक है. ब्रिटेन क्योंकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे चलता है ब्रिटेन, तो उन्होंने अपनी देखो जो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो उनके एल्डर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो ही जजमेंट देते हैं. वो सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे. तो ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट वगैरह अभी लाया गया है रीसेंट पास्ट में, 2-3 डेकेड्स में, पिछले 2-3 डेकेड्स में ब्रिटेन एलैबोरेट हुआ. ब्रिटेन जो है उसने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की तरफ काम किया है. लेकिन ब्रिटेन में आज भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है.
the Supreme Court of Britain is not the final authority to interpret the Constitution. It is the Parliament of Britain which is the final authority to implement and to interpret the Constitution. Formal amendment is perhaps the most significant way of adapting the Constitution to contemporary realities. Clear है guys सभी को? Done? Now, formal method. A formal amending process is as important as the constitution making, and therefore it is rightly termed as constituent process. Constituent assembly वाला काम जब भी constitution जब कभी पार्लियामेंट करती है तो उसको constituent power of the parliament कहा जाता है. Constituent power of the parliament means when the parliament exercises its power to amend the constitution under article 368. क्लियर है? Is it clear to everyone? सभी बताओ फटाफट से गाइस. अभी तक किसी को कोई डाउट? सो वाइल वी वांट दिस, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी यही कहा था. अभी एक बार देखते हैं, 1 मिनट दो मेरे को. Yes. So while we want this constitution to be as solid and permanent in structure as we can make it, nevertheless there is no permanence in the constitutions. कोई भी constitution permanent rigid नहीं हो सकता. There should be certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop nation's growth, the growth of a living, vital, organic people, because constitution at the end of the day reflects people only. In any event, which we should not make a constitution such as other great countries have, which are so rigid that they cannot be adopted easily to changing conditions. Today, especially when the world is in a turmoil and we are passing through a swift period of transition, what we may do today may not be wholly applicable tomorrow. ठीक है, the Constitution of India provides for a variety in amending process instead of a uniform procedure. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही जिस इसकी इम्पोर्टेंस है वैसे ही उसका अमेंडिंग प्रोसेस है. ठीक है, अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो प्रोसेस का अमेंडिंग प्रोसेस भी, अगर कोई लॉ, कोई स्टैट्यूट, कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसका अमेंडिंग प्रोसीजर उतना ही रिजिड है. The more important the process, the more important the provision of the constitution is, the more rigid is the process to amend that provision. Federal provisions हैं. Federal provision मतलब जो provisions center और state से जुड़े हैं, ठीक है, जिसमें states का equal concern है, equal interest है, उन matters को amend करना rigid है. जिसमें जो सिंपल मैटर्स हैं जैसे कि स्टेट्स को रिकैटेगराइज करना, मतलब जो छोटे मोटे मैटर्स हैं उनको अमेंड करना रिलेटिवली आसान है. इट इज ओनली फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स. नोट दैट देयर आर ओनली अ फ्यू for which the ratification of state legislature is required. It is only the Union Parliament which can amend the constitution. लिखो, it is only the Union Parliament which can amend the constitution.
State Legislative Assembly cannot amend the constitution. A state legislative assembly or all the state legislative assemblies combined. A state legislative assembly or all the state legislative assemblies combined cannot amend the constitution. ठीक है? It is only the parliament which can amend the constitution. One state legislative assembly, or even if all the state legislative assemblies combine, they cannot amend the constitution. However, there are some matters in the constitution. There are some matters in the constitution which are amended, which could be amended. However, there are some matters, some provisions in the constitution. However, there are some provisions which could be amended only with the consent of at least half of the states of India. However, there are some provisions in the constitution which could be amended only with the consent of approval of 50% of the states. Now let's turn to the features of formal constitutional amendment in India. There is no separate body for constitutional amendment, and subject to the provisions in the Article 368, the power to amend is vested in the Parliament, that is, ordinary legislation. The only way to initiate the proposal to amend the constitution is by introducing a bill in the Parliament. State legislatures do not have the power to do so. ठीक है? State legislatures do not have the power to do so. Subject to the provisions of Article 368, constitution amendment bills are treated as ordinary legislation bills. That is, they can be introduced in either of the houses, can be amended, and in cases where special majority is required, they must be passed by a special majority in both the houses. Subject to the provisions of Article 368, constitution bills are treated as ordinary legislation bills. They can be introduced in either house or they can be amended. ठीक है? They can be amended in cases where special majority is required. And in cases where special majority is required, they must be passed by a special majority in both the houses of the parliament. I will explain them in detail. Now, Article 108 of Indian Constitution talks about, now you guys will tell what Article 108 talks about. Please answer. Article 108 talks about what? Joint sitting. Provisions of joint sitting are not applicable to so previous sanction of the president is not required for देखो Article 108 of the Indian Constitution states that a deadlock or disagreement between the two houses of the parliament can be resolved. Just 1 minute.
So I was just interacting with one of the students who is not regular with the classes. I'm so sorry. तुम लोगों का ध्यान रहता है। आह, मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। आई एम अ बिट इमोशनल ऑल्सो। तुम लोगों के जो लोग रेगुलर होते हैं उनके नाम नहीं दिखते तो थोड़ी चिंता हो जाती है, राइट। इसमें से कुछ लोग जो हैं, आप लोग जो देख रहे हो वो मेरी बात से एग्री करोगे। मैं पर्सनली तुम लोगों से पूछते रहता हूँ कि तुम लोग कहाँ मर गए हो, पूछता रहता हूँ कि नहीं। तो ये चिंता लगी रहती है, बट काम काज में थोड़ा बिजी हो जाता हूँ गाइज, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस इनिशिएटिव दैट आई हैव टेकन। सो कमिंग बैक, Article 108 is not applicable in case of Constitutional Amendment Act. In case of Constitutional Amendment Bill, joint sitting could not be there. ठीक है, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, डन। Now, previous sanction of the president is not required for introducing the constitutional amendment bills. Article 111 of the Constitution confers veto power on the president, wherein he can withhold his signatures. But the amendment of Article 36, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे ये लगाया जा सकता है। Article 111. Does the president have got veto power with respect to Article 368? With respect to amending power of the parliament, this clarity was not there. ठीक है, but the amendment of Article 368 in 1971 has made it mandatory for the president to give his signatures to the bill. Done. ठीक है, मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। पहले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन 1971 में आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, आफ्टर विच इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज वीटो पावर। लिखो, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज वीटो पावर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। Clear? Previous sanction of the president is not required for introducing the constitutional amendment bills. In certain amendments affecting the federal structure, ratification of not less than 50% of the state legislatures is required. This is more liberal than what is found in USA. ठीक है, prior approval, previous signatures of, yes Manoranjan, you are right, prior signatures of the president are not required for introducing the constitutional amendment bills. In certain amendments affecting the federal structure, ratification of not less than 50% of the legislature is required. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे बिल्स हैं, जैसे मैंने बताया ना, half the number of states is required to sign the constitutional amendment bill. Where is साकेत? साकेत कहाँ हो तुम? ये लोग जो जॉब करते हैं इनके भी प्रॉब्लम्स थोड़ी जेन्युइन है। In certain amendments affecting the federal structure, ratification of not less than 50% of state legislatures is required. This is more liberal than what is found in USA, where ratification by minimum 3/4 of the states is obligatory. तुम लोगों को एक और नया फीचर बता दूं, जो लोग रेगुलर नहीं हो, हमने अब तुम्हारी अटेंडेंस निकलवानी शुरू कर दी है, और तुम्हारे माता पिता को, पूजनीय माता पिता को, तुम नहीं तो हम सही श्रवण कुमार की तरह जो है कॉल करने की, रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। तुम्हें कॉल वॉल आ जाएगा कि भैया रेगुलर क्यों नहीं हो, बहना रेगुलर क्यों नहीं हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, कारण वारन देना पड़ेगा, और जो है तुम्हारे कान खींचे जाएंगे कि तुम लोग मजे मार रहे हो जिंदगी के। दिस इज मोर लिबरल। अब जो नई एडमिशन हो रही हैं उसमें हमने ये कर दिया है कि गार्जियन के साथ कॉल होगी, उसके बाद ही तुम्हें एडमिशन दी जाएगी। नाउ यस इफ्ती, वेरी नाइस, तुम्हें भी उसका ख्याल है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज मोर लिबरल दैन फाउंड इन यूएसए, वेयर रेटिफिकेशन बाय मिनिमम 3/4 ऑफ द स्टेट्स इज ऑब्लिगेटरी। देखो, यूएसए में 66.66% स्टेट्स का ऑब्लिगेशन रेगुलेटरी, इनका जो ये सिग्नेचर है वो होगा
तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा, ठीक है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा। क्लियर? सो दिस इज देयर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ बी सीरियस, अभी हमने ओवरव्यू ले लिया। सिंपल मेजॉरिटी केसेस, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर मेयर provisions of the constitution where only simple majority will do the job. Then special majority, provisions of the constitution where special majority will be required. Then there are certain other provisions. This is the most toughest, this is the toughest kind of the thing here, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय, स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, प्लस कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें फेडरल फीचर्स हैं खासकर गाइस, उसमें ये सारा कुछ। ओके 4 मैसेजेस, तुम्हें 10 मैसेजेस आए हैं, वो 10 में से 5 जो हैं तुम्हारे मम्मी पापा को जाने थे, इसलिए तुम्हारे पास आ गए, राइट? रुक जाओ, मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ टीम के साथ। मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ हार्श होता हूँ, ठीक है, ये क्या होता है कि टीम के साथ भी थोड़ा काना खींची करी जाती है। हैव यू गाइस स्टार्टेड गेटिंग द अलर्ट्स ऑन योर जेवीज आईएएस ऐप? यस, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और फॉरवर्ड भी कर दिया है, ठीक है। Are you guys getting the in-app notifications? Thank you, Harsh, for your concern. Very nice. कभी कभी वेबसाइट में बग आ जाता है तो वो ज़्यादा मैसेजेस भेजने लगते हैं, राइट? नाउ कमिंग हेयर, अब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बता देता हूँ दिक्कत जो पीछे से हुई है। यस, और ऑन ईमेल ऑल्सो अलर्ट है तो एक ही काफ़ी है। वेरी नाइस। एक्चुअली क्या हुआ है कि तुम में से किसी ने डीएनडी रिक्वेस्ट कर दिया था, तो वो डीएनडी रिक्वेस्ट के बाद हमने 2 आईडी एक्टिवेट कर दिया। अब उस दोनों आईडी से इस बार मैसेज चला गया। विल जस्ट लुक इनटू इट। क्लियर? इट विल बी रेक्टिफाइड। विल मेक श्योर कि अब 2 बार मैसेजेस तुम्हें नहीं आए। Simple majority, special majority, special majority in the parliament and ratification by not less than 50% of the state legislatures. For example, simple majority. Currently, Lok Sabha has 545 members in total. During the passage of a bill, 450 members are present and voting. Exclusion of the members that abstain. Simple majority में हम क्या करते हैं? Effective majority गिनी जाती है। Okay, this is also a good question. 2 मिनट रुक जाओ guys. Now, Sanjeev, we will be maintaining your data for missed classes. Can we create a provision for the students who are working or who are not regular with the classes, as to enable them to see how many classes and what were the titles of the classes or dates of the classes which they could not attend? This I know can be done for the future classes, but can we do it for the classes that they could not attend in the past? The tech team, Pranav and Shrishti. Thank you. मैं ये enable करवा दूंगा, हमें डेटा फेच करना पड़ेगा। संजीव, वेरी नाइस पॉइंट। आप लोगों को ये मिल जाएगा कि तुमने कौन कौन सी क्लासेस मिस करी थी, ठीक है। यस, आज कोई इशू था उस वजह से, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, अब इसको ना अच्छे से करवाने दो मुझे, 2 मिनट दे दो। मतलब क्या है, ये स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी जो लोग ये काम चोरी कर रहे थे, जो रेगुलर नहीं थे क्लासेस में, उनका ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस ऑल्सो, उनके लिए ये सही हो जाएगा कि वो अपना ये देख सकते हैं कि उनको ये क्लासेस कवर करनी है। श्रेष्ठा, you can also chip in here by incorporating the topics that were covered in those classes.
Nitesh, okay, we'll do this. Okay, now let's focus on the class, guys. Sorry for digressing. Simple majority, more than 50% of the 50% of 450 इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है ना, सिर्फ उसका, ठीक है, जो लोग प्रेजेंट हैं, पीपल हु आर पी एंड वी, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, present and voting more than 225 will constitute this special simple majority. Thus a strength of 225 plus 1. पढ़ो इस एग्जाम्पल को, खुद से समझ आ जाएगा. Okay, Sanjeev, not an issue, not an issue. Thus, a strength of 225 plus 1 is equal to 226 and beyond will constitute simple majority. Clear? Special majority under Article 368. The bill affecting constitutional amendment requires to be passed by 2/3 of the members of the House who are present and voting. The number of positive votes must be more than 50. ठीक है, 2/3 of the members again who are present and voting. Who are present, members who are present and voting, उसी का ही, ठीक है. आपको याद होगा टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी वाली जो पीपीटी थी. डू यू रिमेंबर दैट द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पीपीटी? उसको आज आपको रिवाइज करना है, ठीक है. नंबर ऑफ पॉजिटिव वोट्स, दैट इज वोट्स इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मस्ट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, देखो, एक तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ये मुश्किल हो गया, 50% से ज्यादा है, ठीक है, 2/3 50% से ज्यादा है. दूसरा जो इसमें होता है वो ये होता है 50% ऑफ दोज, नॉट जस्ट हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिर्फ वो नहीं जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. क्लियर है इफ्ती? पूरा लिखना नहीं क्लियर है, मेरे को पता लग जाए कि फर्स्ट वाली क्लियर नहीं है या सेकंड वाली क्लियर नहीं है, या दोनों क्लियर है. पूरा लिखो फटाफट जिनको नहीं क्लियर है. सेकंड वाला नहीं क्लियर है. देखो, इसमें दो पहलू हैं. स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है उसमें दो तरह से बिल पास होना जरूरी है. एक तो 2/3 लोग उस बिल की फेवर में वोट करें. 2/3 किसका? 2/3 जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3, ठीक है. और इसी के साथ साथ यहाँ पे एंड लिखा है, इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी वाला और. एंड यानी कि प्लस 50% ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग. इसी के साथ साथ ये जो लोग जो वोट कर रहे हैं वो कम से कम पूरी 50% ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ, जो वोट कर रहे हैं वो लोकसभा के पूरे जो 545 हैं, भले ही उस दिन 450 आए हों, 450 का 50% नहीं, इस केस में 545 का, जिनकी डेथ हो गई है, रिजाइन कर दिया है, या फिर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुआ, वैकेंसीज हैं, वो भी मिला के छुट्टी पे हैं, जिन्होंने वॉकआउट कर दिया है. वॉकआउट होता है कि देखो, जब कभी क्या होता था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, है ना, मुलायम सिंह की पार्टी, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी कांग्रेस को सपोर्ट करती थी सेंटर में. तो ये पता क्या करते थे, जब कभी विमेन रिजर्वेशन बिल पास करना होता था, तो ये नहीं कहते थे कि हम हाउस में बैठेंगे. अगर ये लोग हाउस में बैठते, वोट ना भी करते कांग्रेस की फेवर में, बैठे रहते, सिर्फ एब्सटेन करते, एब्सेंट मतलब
वोट करने से मना कर देते, अपने हाथ खड़े कर लेते, तो भी वो बिल पास ना होता है ना। लेकिन ये क्या करते थे, वॉकआउट कर देते थे, इनके मेंबर्स कैंटीन में खाने पीने चले जाते थे। उससे क्या होता था, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाती थी, और जो सिंपल मेजोरिटी वाले बिल होते थे कांग्रेस उन्हें पास कर ले जाती थी। यानी कि हमने ना हाँ बोला, हमने ना बोला, और चोरी चोर चोर जो है चोरी करके चला गया, जो काम होना है वो हो जाएगा चुपचाप। ये इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, जो रस्सी पे फेंस सिटर्स। फेंस सिटर्स कौन होते हैं, जो रिंग में नहीं आते, रिंग में मतलब अखाड़े में जो नहीं आते, जो सिर्फ फेंस के, यहाँ कबड्डी का मैच चल रहा है, यहाँ जाओगे तो पिटोगे, ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं, ठीक है, तमाशा देखते रहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्या करेंगी। दैट्स इट। समझ में आया? इसके जब एग्जाम्पल्स पढ़ लोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इफ्ती, when you would see these examples in detail you would have to revise them today itself. डन है डील? चले आगे? क्लियर है? आगे चलो। स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन, ये सबसे थर्ड टाइप की सबसे मुश्किल। एक तो स्पेशल मेजोरिटी, ऊपर से रेटिफिकेशन। तुम इसको कंसोलिडेट करो एक बार, फटाफट कंसोलिडेट करो, आराम से पढ़ो, जल्दी से मत पढ़ो। चलो, toughest type of majority, special majority in the parliament plus ratification by not less than 50% of the state legislatures, which is 16 in number. This type of special majority is applicable when a bill intends to affect the federal structure. जो फेडरल प्रोविजंस हैं जिसमें स्टेट्स का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, स्टेट्स का इंटरेस्ट क्या प्रेसिडेंट में जुड़ा हुआ है? यस, प्रेसिडेंट एज आई टोल्ड यू इज इक्वली ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। स्टेट्स आल्सो वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो अगर आप स्टेट कोई भी ऐसा, जैसे जुडिशरी थी, जुडिशरी में चेंज किया गया, एनजेएसी बिल लाया गया, तो 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव टू पास अ रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ बिल। ठीक है, देखो पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा को तो ऐसा बिल, ये वाली स्पेशल मेजोरिटी वाला बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये बिल भेजा जाता है तो उन्हें सिंपल मेजोरिटी से पास करना था। पार्लियामेंट ने बिल पास किया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने, उसके बाद ये बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भेज दिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितनी है इंडिया में आज? 28। 28 में से 15 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगर इसको सपोर्ट कर देंगी तो ये बिल पास हो जाएगा। जीएसटी, जीएसटी में कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों इंटरेस्टेड थे। सम ऑफ द टैक्सेस वर डिवॉल्व्ड टू द स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, whereas some of the taxes were given to the center, union government, central government by the constitution itself. बट अब जब दोनों टैक्सेस को मर्ज किया जा रहा है और एक नया टैक्स बनाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सेंटर और स्टेट्स दोनों की सहमति जरूरी है। अब सारी स्टेट्स को अग्री करना तो दिक्कत हो जाती है ना, कम से कम 50% स्टेट्स अगर अग्री कर जाती हैं, 50% प्लस 1, तो ये बिल पास हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि पार्लियामेंट ने ऑलरेडी ये बिल पास कर दिया है। पढ़ो इसे, जस्ट पढ़ो फटाफट।
Are we clear, guys? It's not offline. A teacher logged off for a brief while. ठीक है. So GST bill received the 443 positive votes in Lok Sabha and 203 positive votes in Rajya Sabha. ये ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 3 मेथड्स हैं देखो सीधे सीधे बिल को अमेंड करने के. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. Amending process has proved to be one of the most ably conceived aspects. Granville Austin ये कहते हैं assembly did not show a casual attitude towards the amending process. तो वन बाय वन समझते हैं इसको. वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड, डीपली कंसीव्ड, बहुत ज्यादा विचार विमर्श इस पे किया गया, सोचा गया. Okay, so this is there. It may appear complicated, but it is diverse by providing 3 ways of ascending difficulty for altering the constitution. This variety of amending the process has been praised by Dr. Weir, who has commented that it strikes a good balance by protecting the rights of the states while leaving the remainder of the constitution easy to amend. Assembly had lack of immediate experience as the Government of India Act could be changed only by the British. That too in the Westminster, and only a small amount of time was dedicated to the issue. Therefore, Assembly's success is noteworthy. ठीक है, तो most of the draft constitutional provisions were framed in committees, then debated many times on the floor, returned to the committees for redrafting and debated again. Granville Austin ये बताते हैं कि assembly did not show a casual attitude towards the amending process, but that the blend of the amending techniques found support by both those supported an easy process. ठीक है, and by those supported by both those who supported an easy process and by those who wanted to protect the federal structure. ठीक है, तो ये उसके ऊपर कमेंट्री है. 3 mechanisms or processes for amending the constitution were a compromise that was worked out by drafting committee and designed to achieve a flexible constitution. The compromise was between 2 groups. One group of the Constituent Assembly wanted the amending procedure like that of USA, very very rigid, and the other group wanted amendability of entire constitution by a simple majority. फिर नेहरू रिपोर्ट का इससे जो लेना देना है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं. ठीक है. रिकमेंडेड अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. देयर वाज अ सजेशन इन दैट in it that the bill passed through 2 readings and was passed at the 3rd reading by the 2/3 of both the houses in a joint sitting could amend the bill. ठीक है. 2 रीडिंग्स जो है दोनों हाउसेज में अलग अलग होंगी. एक सजेशन था नेहरू रिपोर्ट का दैट बिल which passed through the 2 readings and was passed at the 3rd reading by the joint sitting. ठीक है, by the 2/3 of the both the houses in a joint sitting. ठीक है, दोनों हाउसेज में पहले बिल पास होके आएगा सिंपल मेजोरिटी से, फिर जब जॉइंट सिटिंग करवाई जाए और फिर दोनों जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेज की इस जॉइंट सिटिंग में 2/3 मेंबर्स बिल को पास करें. सप्रू कमेटी रिपोर्ट recommended that only formal amendments could be enacted by central legislature. For consequential amendments, 6 months notice had to be given. At the end of 6 months, amendment bill could be introduced in the legislature, and if passed by a 2/3 majority and ratified by the same majority of provincial legislatures, it can become an amendment. Certain very important provisions which were to be listed in a schedule were to be excluded from the amendment for 5 years. ये अलग अलग कमिटीज हैं, तुम्हें पता होना चाहिए बस एक डिबेट और डिस्कशन और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए. पढ़ो इसे एक बार, फटाफट से पढ़ो. किसी को कोई मीनिंग नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो.
If any of you is not able to understand, you can ask me directly. टू रीडिंग, बिल की 3 रीडिंग होती है ना, इफ 3 रीडिंग्स होती हैं, 2 रीडिंग तो हो जाएंगी हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग। तीसरी रीडिंग जो है वो जॉइंट सिटिंग में होगी, और तीसरी रीडिंग में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। पहली 2 रीडिंग्स अपने अपने हाउस में होंगी जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। चमका? Dr. Ambedkar laid a great stress on the importance of amending process in federal constitutions. He refuted the notion that the assembly, because of being elected indirectly, is not fit to frame a constitution. ठीक है, उन्होंने ये नोशन को रिफ्यूट किया that constituent assembly, because of being elected indirectly, और लोग ना इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे एक एलिगेशन लगा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लोगों ने डायरेक्टली उसे इलेक्ट नहीं किया, तो वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। He iterated that constitution is a fundamental document and utter chaos will occur if the constitution could be amended by simple majority of the parliament. While explaining the reasons behind the amendment needing ratification by provincial legislatures, he said that in a large number of cases the provincial autonomy has been invaded and that the measures have to be taken for the federal structure of constitution to remain unaltered. He said that in a large number of cases, the provincial autonomy has been invaded and that the measures have been taken to for the federal structure of constitution. ठीक है, समझ में आया? तो उनका ही जो कंसर्न था, is this reading different from the budget? Manuranjan, I think you were there in that class, my dear, in which I had explained the first reading, second reading, third reading of ordinary bill. Okay, in the budget, the process becomes a little technical because finances are involved. Cut motion, the policy cut, economy cut, these kind of motions are there in the budget passage, in the reading of the budget. Please refer to the reading of the general bill, ordinary bill, lecture containing that. Okay, now guys, one, two or three more concerns. After every class, after your class is over, I'll be forming a Google form. I'll be creating a Google form which would ask you some points regarding some questions regarding the rating of a teacher. If you do not rate the teacher properly, if you do not fill that form, you would not be given the access to the next class. It is going to be mandatory for you. And on the positive side, if you are regular in sharing that Google form with us, giving us true insights into the way the teacher is teaching you, we will be giving you some JVs points. ठीक है, कॉइन्स वाला सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, जिसमें कि आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप आने वाले कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको हमारे लिए ये बताना ज़रूरी है, हमें टीचर के पढ़ाने के वे में इंसाइट्स मिलें,
कि क्या चीज़ें टीचर ने कवर करी हैं क्या नहीं करी। ठीक है, बिल रीडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, मनोरंजन। समझ में आया तुम लोगों को? एक गूगल फॉर्म आ जाएगा कल से कमेंट सेक्शन में, जैसे ही मैं क्लास ले रहा हूँ पहले मेरी ड्यूटी होगी मैं वो कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करूँ, या फिर नीचे जो तुम्हारी क्लास का ये दे रखा है ना डिस्कस फॉरम, वहाँ पे वो फॉर्म रहेगा। तुम फॉर्म को फिल नहीं करोगे अगली क्लास छुट्टी। एवरी डे, यस, एवरी डे यू हैव टू डिस्क्राइब कि सर ने ये टॉपिक अच्छे से नहीं कवर। दिक्कत है कोई तो बताओ। अगर तुम ऑफलाइन क्लास में होते ना, मैं जो रेल बनाता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, जो रील बनाता है एवरी डे पे। ऑफलाइन क्लास में आना मत गलती से, मतलब हाँ पढ़ने में फायदा रहता है उसमें। ऑल 5 क्लासेस तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम क्या दिक्कत क्या है उसको रेट करने में? तुम लिखोगे कि ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है, कौन कौन से टॉपिक्स क्लास के टाइटल में लिखे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स टीचर ने कवर नहीं किए, कोई कोई टॉपिक जल्दी जल्दी से भगाया है। समझ में आया? ये सारा बताओगे तभी तो, फिर नहीं तो फिर हम फन अकेडमी बन जाएंगे। ये अभिषेक के लिए था जब ये पूछ रहा है ना, आई ऑल क्लासेस। वेरी नाइस। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऑफलाइन में आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ये अभिषेक श्रीवास्तव तुम ये जो पूछ रहे हो ना ऑल 5 क्लासेस, दिस इज फॉर योर। देखो हमें फन अकेडमी नहीं बनना, फन अकेडमी में गए कुछ भी पढ़ाओ, है ना। तो मेरी दिस इनिशिएटिव इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तुम लोगों को नहीं पता, दिन रात एक करके मैं इसमें लगा रहता हूँ। सोता हूँ मैं रात में 2-3 बजे, सुबह उठना नींद खुल जाती है 7 बजे। 7 बजे से ये मैसेजेस टीम को, इनिशिएटिव जो क्लिक होते हैं वो सब करना। आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट माई वर्क। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ है, रोज इतना बड़ा देखो, तुम्हें सिंपल शॉर्ट शॉर्ट में भरना है, रेटिंग देनी है, फिर तुम्हें ये बताना है कि टीचर ने तुम्हारे फायदे के लिए ही है बच्चे, मैं मेरे लिए कुछ नहीं है ये, समझ रहे हो ना। जिस दिन तुम्हें लगे अच्छा पढ़ाया है टीचर ने, उस दिन यस नो कर दो और रेटिंग दे दो 5 आउट ऑफ 5। जिस दिन तुम्हें लगे बुरा पढ़ाया है उस दिन तो हाईलाइट करोगे ना। यस नो वाले क्वेश्चंस ही रहेंगे, है ना, 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऑफलाइन वाले जो लोग शॉर्टकट लगा रहे होगे ऑफलाइन देख लेंगे और वो करेंगे। इसमें सिस्टम में एम्बेडेड रहेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग कोडिंग ऐसे करी गई है वेबसाइट की कि अगर तुम्हारा फॉर्म रेगुलरली फिलअप नहीं हो रहा तो तुम्हें अगला लेक्चर 2-3 लेक्चर नहीं दिखने, बंद हो जाएंगे दिखने, फिर तुम मैसेज करोगे ये सब करोगे। तो खाना पूर्ति मत करना, सिर्फ रेटिंग देनी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। कौन पूछता है रेटिंग? रेट मिल गया, समझ रहे हो ना, उसके बाद चल दी फन अकेडमी। क्यों? हमारे पैसे ऊपर से नहीं आ रहे, तुम ही लोगों से आ रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए ये सब किया गया है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी रेटिंग दे देना। नाउ while explaining the reasons behind the amendment needing ratification by the provincial legislatures, he said that in a large number of cases provincial autonomy has been invaded and that the measures have been taken for the federal structure. All right, he said that amending the provisions laying down the distribution of powers and of revenue without permitting the provinces, without permitting the states to have any voice, is in his judgment, Dr. B.R. Ambedkar's judgment, altogether nullifying the fundamentals of constitution. Okay, so this is there. Now, amending the provisions laying down the distribution of powers and of revenue without permitting the provinces or the states to have any voice is in your judgment altogether nullifying the fundamentals of the constitution. Clear? So this is there. The provisions for amendment were evident compromise between the view that Parliament should amend any part of the Constitution and the more traditional concept of amendments in federations. There was a compromise between two very different views, and on why the compromise might have been there without much difficulty. Granville Austin states that the assembly members might have realized that their efforts were subject to error. ये खुद पढ़ोगे, बोल बच्चन है, ये देख रहे हो तुम्हारे सामने, है ना। ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे ये वाला पार्ट। Who will teach govern international relations? There will be a very good teacher. He was teaching previously at Chanakya. Okay. जो भी टीचर हैं तराश तराश के लाए गए हैं। उसके बाद कुछ क्लासेस आईआर में मैं लूँगा।
सिक्योरिटी इश्यूज में कुछ क्लासेस मैं लूँगा, जो आईपीएस रिटायर्ड हैं कोई सिक्योरिटी की क्लासेस वो लेंगे जो नेक्सल एरिया में पोस्टेड थे। और बताओ, ठीक है, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। गवर्नेंस की क्लास एक सुनील गुप्ता सर हैं जो पब हेड पढ़ा रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे कंसर्न्स को एक बार हाईलाइट वो आंसर कर दे रहा हूँ। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो लेंगे, और वो सिर्फ टीचिंग में ही हैं। ठीक है, जो आप देखते हो, तुम लोगों को सब पता है, एडुकेमी पे पब हेड पढ़ा रहे थे वो सर, है ना, तो हमने उन्हें वहाँ से छीन लिया है। नाउ द मेंबर दिस थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम फन एकेडमी। नाउ छीनना और सताना और ये सब है ना, समझ रहे हो ना, सताना नहीं सीखा है, सिर्फ छीनना सीखा है। नाउ आई विल बी डीलिंग दैट। गवर्नेंस मैं ले लूँगा, अच्छा ठीक है, गवर्नेंस मैं ले लूँगा। इतनी जल्दी जान थोड़ी छूटेगी, 5 सितंबर को पैदा हुआ था मैं, है ना, तुम लोग एहसास दिलाते रहो। द मेंबर्स थॉट दैट both the views were reasonable and were supported. Governance I'll be taking, okay? Governance जो टॉपिक तुम कहोगे, डायनामिक टॉपिक्स मैं ले लूँगा बस। अच्छा, 4 जनवरी से, सॉरी फॉर अगेन, 4 जनवरी से सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास होने जा रही है। Another faculty from the coaching institute named Forum IAS। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा कुछ रहेगा। वेरी नाइस फैकल्टी, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस वो लेंगे। नाउ सो द मेंबर्स थॉट दैट बोथ द व्यूज वर रीजनेबल। इसको थोड़ा खुद पढ़ लेना, अब आगे आते हैं, काम की बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज ऑफ रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, depending upon the degrees of rigidity of the portions of constitution, there are 3 classes of amendments of its provisions. Amendment by simple majority. Constitutional provisions are of comparatively less significance. It can be amended by simple legislative process as is adopted by the parliament in passing ordinary legislation. 3 hours class, only 20 classes. ठीक है, only 20 days to suffer. मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, सोचो। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर ऑफ कंपैरेटिवली लेस सिग्निफिकेंस. इट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस as is adopted by parliament in passing ordinary legislation. This refers to the majority of more than 50% of members who are present and voting. Most of the normal motions of the House, like no confidence motion, adjournment motion, etc., require simple majority. ठीक है, कोई भी several articles of the constitution make provision for a tentative nature and the parliament has been given the power to amend laws. Such a law can be made by ordinary legislative process. अप्रैल तक। अभी उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। Such a law can be made by ordinary legislative process and is not to be regarded as an amendment of the constitution and is not subject to special procedure prescribed in article 368. ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कहाँ हो इफ्ती उद्दीन, इफ्ती कहाँ हो तुम? इकोनॉमिक सर्वे हम करेंगे मार्च में, जो कि 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट रिमेन्स इंटैक्ट बट द पार्लियामेंट मेक्स डिफरेंट प्रोविजंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड सी सैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट, जिसमें कि 55 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, सी सैट में अनदर ग्रेट फैकल्टीज देयर, मैं नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि अभी अग्रीमेंट नहीं हुआ है साइन। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ इको भी मार्च में कवर होंगे। ओके संजीव, शुभम, तुम लोगों की जो जूम कॉल्स ड्यू हैं सैटरडे को, सारी जूम कॉल्स मिटाएंगे। ठीक है, ये देखो उस चीज का रेपिटेशन हो रहा है कि कौन कौन से केसेस में जो सिंपल मेजॉरिटी एप्लीकेबल है। इसको खत्म करने दो, बाकी के क्वेश्चंस मैं लास्ट के 5 मिनट तुमसे इंटरेक्ट करूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन पूछ लेना ये सब। ठीक है, जस्ट
Just 1 minute, guys. Yes, now it's fine. पहली स्लाइड में कोई दिक्कत? इफ्ती ऐसे ही पूछ रहा था, सो तो नहीं गए तो मुफ्ती की क्लास तो नहीं मान ली कहीं मुफ्त की, है ना? Now, this refers to the majority of more than 50% of the members present and voting. Most of the normal motions of the House, like no confidence motion, adjournment motion, etc., require simple majority. Several articles of the Constitution make provisions of a tentative nature, and Parliament has been given the power to amend laws. Such a law can be made by ordinary legislative process and is not regarded to be the amendment to the Constitution, and it is also not subject to any special procedure. ऐसी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केसेस में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं आती, बट पार्लियामेंट मेक्स डिफरेंट प्रोविजंस. आगे देखते हैं. A large number of provisions contained in the Constitution are open to change by simple majority. These may be divided into two classes of amendments, where the text of the Constitution is not changed, but the law is changed. ठीक है. Article 11 confers on the Parliament the power to enact a law regarding citizenship. An act made in pursuance of this power to change citizenship, for example, Citizenship Amendment Act 2019, will change the law relating to citizenship without altering Article 11 or Articles 5 to 11, Articles 5 to 10. ठीक है, पढ़ो इसे. Originally, Constitution provided that Supreme Court shall consist of Chief Justice and 7 judges. Article 124 ये कहता है there shall be a Supreme Court of India consisting judges, these many judges, until Parliament by law prescribes. ठीक है. This amendment shall not be considered as the amendment in strict sense of the term. Done है? समझ में आया? पानी की बोतल थी, ठीक है, कोई और नहीं थी. देख लो तुम, आधी बोतल दिख रही है उसमें, आधी नहीं दिख रही. कहीं बोलो पता नहीं क्या पी रहा हूँ, है ना? कम नहीं हो तुम लोग. नाउ टाइम भी ऐसा हो रहा है ना. नाउ कमिंग हियर, Parliament enacted Supreme Court Number of Judges Act to increase in the number of judges of the Supreme Court, excluding CJI. It has been amended several times to increase the number of judges. In 1986, number of judges was increased from 18 to 25. तो समझ में आई एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है. नाउ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी. दूसरा क्लास देखो, पहला क्लास था, पहले क्लास ऑफ केसेस था, फिर दूसरा क्लास ऑफ केसेस था. ठीक है. पहले क्लास में जहां पे टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट चेंज्ड, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया. ठीक है. यहां पे लिखा है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 7 जजेस. कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेक्स्ट लिखा है वो सेम रहता है. क्यों? क्योंकि एक नया एक्ट बना दिया गया. मैडम यहाँ पे नहीं, मैडम घर पे हैं. ठीक है. डांट पड़ेगी मुझे, आज मैं लेट हो गया, है ना. नाउ कभी कभी लगता है कामिदा इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है. नाउ वेयर द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट चेंज होता है. तेलंगाना लिखा जाएगा, राइट. तेलंगाना लिखा गया, आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया. आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट दिस. मेरा पॉडकास्ट सुना है आर्टिकल 3 पे? पॉडकास्ट थोड़ा सुन लेना, मैं वैसे भी शेयर कर दूंगा आर्टिकल 3 वगैरह. हम प्रीलिम से पहले इनको रिवाइज करेंगे मेरे यानी जतिन वर्मा के साथ. सारे आर्टिकल्स का एक बार रिवीजन करेंगे, चाहे यूट्यूब पे फ्री हो या फिर यहाँ पे हो. ठीक है. क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल.
Creation of Council of Ministers for Union Territories, extending the period of 15 years fixed for the use of English in Article 343. Article 343 Clause 3, इस आर्टिकल में जो भी दिया गया है उसको नजरअंदाज करते हुए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द यूज आफ्टर द सेड पीरियड ऑफ 15 years of the language English or Devanagari script of a form of numerals or for such purposes as may be specified in the law. ठीक है ना? क्रिएशन ये क्या है? ये वो देखो, अमेंडमेंट हो रही है सिंपल मेजॉरिटी से. उस सिंपल मेजॉरिटी के प्रोसेस के अंदर दो क्लास ऑफ अमेंडमेंट्स हैं. क्लास ए जहां पे टेक्स्ट चेंज नहीं होता. बनाओ इसको. दूसरा, अर्शिका, आर यू एबल टू सी दी सेशन नाउ? सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन करने वाला जो लॉ होता है, आर्टिकल 105 पढ़ चुके हैं हम. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ा था ना. उसको चेंज करने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी. ये जो मैटर्स हैं, तुम्हें क्या काम करना है आज? होमवर्क तुम्हारा ये है, मैटर्स विच आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड मैटर्स विच आर अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. पढ़ोगे मरोगे, नहीं पढ़ोगे. जो मैंने पीपीटी पहले दी थी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी वाली, वो पीपीटी खोलना आज, ओपन करना उसे. ठीक है. ये मैं पढ़ा चुका हूं. और जो मैटर्स तुम्हें और मिल रहे हैं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे. इसे लिखोगे कि नहीं, लाल काला नीला जो भी पेन लेके इसको खुद लिखना कि कौन से मैटर्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होते हैं, कौन से मैटर्स हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होते हैं. ठीक है. Amendment of the Constitution by special majority. Special majority means the majority of votes of 2/3 of the members present and voting, and it should exceed 50%. So this is there. ठीक है. तो 50% of the house. इफ्ती, सो रहे हो, जाग रहे हो? ये मैंने जो अभी समझाया है, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं. ठीक है. एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस विच आर अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी फॉर अमेंडमेंट. देयर आर, अब क्या है? अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन, जो तीसरी सबसे डिफिकल्ट टाइप जो हमने समझी. ठीक है. देयर आर सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कैरेक्टर, कैरेक्टराइज्ड एज एंट्रेंच्ड प्रोविजंस. मतलब रसे एकदम से धसे हुए प्रोविजंस. एंट्रेंच, डीपली एचेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी रिजिड. इनके लिए 1/2 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए होती है. ठीक है. केसेस वेयर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 इज रिक्वायर्ड. स्पेशल मेजॉरिटी सबसे रिजिड वाली. सीएजी, सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का अमेंडमेंट. रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको चेंज करना है तो इसको अमेंड करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से. कौन सी? फेडरल वाली स्पेशल मेजॉरिटी. फेडरल वाली का मतलब जिसमें 50% स्टेट्स का सहयोग भी चाहिए होता है. 50% प्लस 1 स्टेट. To pass a constitutional amendment bill which does not affect federalism, approval of national emergency requires special majority as per Article 368 in both the houses. Resolution by the state legislature for the creation, abolition of legislative council. Article 169. Done. Article 368 in part 20 of the Constitution. So ये सारा कुछ है. Formal Constitution Amendment in India. Article 368 in part 3. Article 368 deals with the power. तो इसको थोड़ा खुद पढ़ना. ये देखो, ये आर्टिकल दे रखे हैं यहाँ पे. ठीक है. अच्छे से पढ़ना इसे. ये होमवर्क वाला काम है, मेरा काम नहीं है. मेरा काम वहाँ खत्म हो गया पीछे. Clause 4 and 5 were inserted and चलो मैं ये समझा दूंगा लेकिन कल.
अब तुम्हारे क्वेश्चन शंकरी प्रसाद, ये देखो, ये सारी हिस्ट्री ना हम कवर कर चुके हैं पीछे। एक दो केसेस थोड़े बहुत नए हैं, जो एलसी गोलकनाथ और ये सब, ठीक है। गोलकनाथ का नाम के आगे एलसी लगा हुआ है, ठीक है, बस इतना सा ही चेंज है। बाकी गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सब हमने डील किया है, ठीक है। ये इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, जिसे एडीएम जबलपुर केस कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार, मैं कवर करूंगा। जिसने जुडिशरी नहीं पढ़ा था कल, वो भी पढ़ लेना। अब आते तुम्हारी बात सुनते हैं एक बार। अब बोलो तुम्हारे क्या क्या कंसर्न्स हैं कोर्सेज को लेके, क्विकली बोलना फटाफट। Yes. Now ask me any concerns you have. Whatever concerns you have, you can ask me directly now. मैं अभी ऑफिस में हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता लग गया होगा, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है जिससे हम यूज़ करते हैं ये सब कामों के लिए। सैटरडे में क्लास हो सकती है जैन या फेब से, ठीक है। सिलेबस वैसे तेज चलेगा अभी थोड़ा, ताकि तुम लोग जल्दी फ्री हो जाओ। यू गाइज वुड हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो आपका कंसर्न था आर्शिका कि बैक टू बैक क्लासेस होंगी तो पढ़ेंगे कैसे, देखो दो बातें हैं। सिलेबस हमने शुरू किया था कब, शुरू किया था सिलेबस अगस्त में, ठीक है। उस हिसाब से हमारे पास दो बातें, या तो हम सिलेबस को प्रोलॉन्ग कर लें, आधा सिलेबस छोड़ दें, ये सब कर लें, या फिर ये है कि हम थोड़ा तेज गाड़ी को दौड़ाएं। समझ रहे हो ना। और हिस्ट्री वगैरह माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कवर करना है तो फिर तो ये काम करना होगा ना यार। समझ रहे हो ना कि ऐसे कैसे काम होगा। अब मेरे को सी सेट भी पढ़वाना है अगर तुमसे, तो मैं अपनी तरफ से डिलीवर करना चाह रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। समझना पड़ेगा तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं है गाइज। समझना मेरे कॉन्स्ट्रेंट को। या तो मैं तुम्हारा सिलेबस कट कर दूं, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा है ना। सिलेबस कट इन द सेंस कि हिस्ट्री छोड़ो, नहीं पढ़नी मत पढ़ो। तो वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसीलिए टीचर्स को काफ़ी रिक्वेस्ट करके हमने क्लासेस को छोटा किया है। मतलब नंबर ऑफ क्लासेस को लेस करके ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस बढ़ाई गई है। हाउ शुड वी कवर एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? Okay, how should you cover everything apart from classes? What is that everything? Could you please tell me? Everything when it is being covered in your classes. So this is the problem. समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। हाँ संजीव, आई डू अग्री विद यू कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। बट देखो गाइज, अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, हम लोग, मैं अपनी बात भी अगर तुम्हें बताऊं, तो मेरी 3 क्लासेस हुआ करती थी, 2.5 घंटे की एक क्लास होती थी। आधा घंटा आने में लगता था, यही पास में ये बाजाराम और ये सब, ठीक है। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, दूसरा जीएस की क्लास लगती थी, फिर शाम को सी सेट की और ये सब क्लासेस, 2 जीएस की क्लासेस हमारी होती थी। मैंने जब यहाँ पे बैच ज्वाइन किया था तो हमारा बैच अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उस टाइम पे क्या था, बाजाराम की नई बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम। तो हमारी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्लास होती थी, क्योंकि इनको नई बिल्डिंग बनानी थी। इन लोगों ने क्या किया कि क्लास एक दिन छोड़ के होती थी, बाकी दिन, क्योंकि बिल्डिंग कम थी इनके पास, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें भी 7.5 घंटे की क्लासेस, प्लस हर क्लास के लिए आधे घंटे का आना, आधे घंटे का जाना। सुबह 7:30 बजे हम उठते थे, 8 बजे हम बाहर क्लासरूम के बाहर कतार में खड़े हुए दिखते थे। 7:30 बजे उठते नहीं थे, मतलब 7:30 बजे घर से निकल जाते थे अपने फ्लैट में, जो भी यहाँ पे जो रूम ले रखा था। तो करना पड़ता है गाइस, मैं, इट इज़ द बेटर रियलिटी। देखो हमारी कोशिश ये रहेगी, 27 जून को प्रीलिम्स है, राइट। तो हम क्लासेस को जितनी जल्दी हो सके मई तक ख़त्म कर दें, 15 मई तक, या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हम इसे ख़त्म कर दें, ताकि आपके पास 2 महीने जून के लिए रिवीजन के लिए बच जाएं। गवर्नेंस जो है, अगर ऐसा होता है, अभी फोकस हम लेके चलेंगे प्रीलिम्स वाले कोर्सेज पे। इफ़ इट सो हैपेंस दैट प्रीलिम्स वाले कोर्सेज जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं,
तुम हिस्ट्री को तो मत मानो। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने हिस्ट्री कमिट इसलिए नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं बच रहा था, बट वी आर प्रोवाइडिंग हिस्ट्री एंड सी सैट टू यू एज एन एड ऑन। फॉर दिस वी डिड नॉट आस्क फॉर एनी एक्स्ट्रा थिंग और एनीथिंग, है ना। वी आर जस्ट डूइंग इट प्रो बोनो, कि ठीक है हमारे स्टूडेंट्स आप लोग पहला बैच हो, तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, इवॉल्व होते देखा है हमें, और बहुत आप लोगों ने जो है अकोमोडेट भी किया है मेरी बीमारी के टाइम पे और ये सब, तो उस वजह से वी आर जस्ट गोइंग अहेड विद इट। ठीक है, उसमें पैसे वैसे जो लग रहे हैं मैं वो नहीं बात करूंगा यहाँ पे। सिंपल सी बात ये है, हिस्ट्री और सी सैट की क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स हम अभी करवा देंगे। यदि आप चाहो तो उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो मार्च अप्रैल में, या जब आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे मई जून में। 2 महीने इनफ है सी सैट को, अगर आप 2-3 घंटे क्लास देखते हो और तब थोड़ा तरोताज़ा भी होगा। हिस्ट्री जो है आप अभी कवर कर सकते हो, समझ में आया? Before 3 or 2 months exam of the exam, any prelims related initiative will be there? Yes. Pre special batch or something we are planning. We had a discussion, lengthy discussion today. So इसी की वजह से थोड़ा क्लासेस वगैरह मिस हो रही हैं। ठीक है, देखो अभी भी फैकल्टी से ही बात चल रही है जो सी सेट के हैं। नो प्रॉब्लम। नो, धीरे धीरे से सारे सब्जेक्ट कवर करे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर हो गया ना, मॉडर्न हिस्ट्री वो सर पढ़ा रहे हैं, फिर वो सर मार्च अप्रैल में दोबारा वापस आते हैं तो दोबारा से होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इस तरह से प्लान किया जा रहा है कोर्सेज को, और आप लोग जो है उसका बेनिफिट के लिए ये किया जा रहा है। जो 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 चीज़ें कमिटेड हैं, साइंस एंड टेक का भी बैच अभी स्टार्ट हो जाएगा फेब में, या कुछ ऐसा प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स गिवन इन द शेड्यूल। वर्किंग प्रोफेशनल वाली जो चीज़ है, मैंने जैसा बताया कि ये करना पड़ता है। हमारा जो बैच ओवर हुआ था उस टाइम पे 1 महीना 25 दिन मिलते थे हमें, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। और इसी टाइम में तुम्हारे चांसेस ज़्यादा होते हैं क्लियर करने के, क्योंकि सब कुछ अभी वेल रेड होता है, सब कुछ नया नवेला पड़ा होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, बोनी यादव, आई हैव गॉट योर मेल, यू रिक्वेस्टिंग फॉर द जूम सेशन। आर यू देयर अवेलेबल इन द ग्रुप? मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये दोनों भी कवर होंगी, डोंट वरी। Okay, Boni, I got your mail and I've passed it on to my team. They will schedule your Zoom meeting accordingly. Okay. All right, guys. कोई भी आप लोग मेल भेजते हो, कोई टेलीग्राम मैसेज भेजते हो, सीधा मेरी स्क्रीन पे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? And I try replying to 99% of them. So this was all for today. See you tomorrow, guys. All right. Thank you, everyone. Bye bye, guys. Thank you. All right. Thank you, guys. Good night, everyone. तुम्हारे जो कंसर्न्स हैं मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम पढ़ते रहो, डिलीजेंटली पढ़ो, सारे कंसर्न्स तुम्हारे अपने आप थोड़े खत्म होते जाएंगे। जो भी तुम्हारे कंसर्न्स हैं वी विल ट्राई टू आयरन देम आउट, डोंट वरी। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे, आईएएस ऐसे हर कोई तो नहीं बन जाएगा, है ना, ये वाली चीज़ है। थैंक यू।